Good evening. Today we are going to speak to someone who is admiringly known as Bad Woman. And she has not only championed the cause of health of women in India, but she has turned herself into some sort of a warrior who has taken this whole movement pertaining to the health of women in India to one next level. The person who is there with us today, she has a very humble beginning. She did her education in a small village. Then she moved to the Inter College in Jabalpur. She did her dissertation project in AIIMS, and finally she moved for a PhD to USA. But she remained connected to her roots, and USA could not hold her for too long. She came back to India to make a difference to the place, to the women, to the people where she came from. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Maya Vishwakarma, who is there with us. Madam, it's my pleasure to have you here and have a heart-to-heart chat with you. Just to highlight a few achievements of Miss Maya, she is the founder and the chairperson of Sukarma Foundation. She has been well known across the industry, nationally and internationally. She has taken numerous initiatives in the rural education. She is running a telemedicine center, and she is widely known for her philanthropic work. So Miss Maya, as I said, it's my pleasure to have you here. And if I can ask you, normally people, when they get out of the dungeons of poverty, as was your case, and they do well in life, it is very difficult for them to break that ceiling and come back to the roots. How and what prompted you, what motivated you to come back to Jabalpur again? Thank you so much, and it's an honor to be here with all of you. It's absolute honor. So one thing I want to say, I belongs to a very small village, which is a Mehra Gaon. You cannot find in a Google. I mean, few years back, but now you can find. So that village, I grew up with a lot of hurdles and all. And my father is a blacksmith, and we had the regular stuff. And living and growing up in that village, because we did not had a support system to have a water, sanitation, roads, and electricity. We used to bring the water from the rivers and then go and work in the farms. So that brought you as a very humble and very strong person. And when I went from my village to another village for my education, because that has only 8th grade school, and then later another village, then college and Delhi, and then America. So one thing I have realized, three things will not stay together. First is your time and money and your energy. When you have a time, which is 20 to 30 something, you don't have money, but you have energy. So the philanthropy work requires three things together: time, money, and energy. So in my case, when I moved to Silicon Valley and I started living there, I was researcher in a UCSF cancer biology. It was fantastic work. And living there, seeing all the older people who migrated from India a long time ago, they are like a billionaire, millionaires and all. One thing I realized, they really want to support India. They want to, go and work. But they don't have that energy. They have a passion. And in my case, I don't have money. I have energy. Time, I can take it out from my work and then, just go and support. So all these three things I lined up, and I felt for my village, because I'm the hope for thousands of girls, thousands of people. You went to America, and then, what happened? You are coming to village, they are honoring you, they are, respecting you a lot. But you feel really something which, how can you bring more people, more girls from that area? And how can you can uplift all those people from the poverty? So that's why I thought okay, I have a time, I can take it out. I may not have money, but I have equal energy. In this age, I can go and connect people, because I know their local language. I'm one of them. I'm one of the girls from that area. So that charm is there. So if I stay 40 years
in US or Silicon Valley, I may not be a same person. So that is the basically, you know, the process which I followed, and I came to my village. Yeah. माया जी, जो आपने अभी कहा, I mean it is a dream story for everyone. लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ें स्पेशली औरतों के लिए, जिनके बारे में पति पत्नी तक आपस में बात करने से कतराते हैं, एक शर्म है, एक झिझक है हमारे समाज में, और समाज में इस सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जाती जनरली, तो आपने इसी पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क को क्यों चुना? कि वाई डू यू फील दैट इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन वुमेन? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जब मैं गांव से हूँ, मेरे साथ भी वही घटनाएं हुई जो आज की गांव की लड़कियों के साथ होती हैं। हाई स्कूल में जब हम बड़े होते हैं तो हमें भी वो सेम चीज़ दी जाती है, और जब मैं थी तो उस समय मुझे जो घर में बताया गया था बड़े बुज़ुर्गों के द्वारा, वही मैं फ़ॉलो किया, और समहाउ एक अपने जीवन के पड़ाव में मुझे वो परेशानियाँ हुई, इन्फेक्शन हुए, और वो चीज़ जब मैं अमेरिका में जाके देखा कि यहाँ पर ये सब चीज़ें कॉमन नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर सैनिटेशन इतना अच्छा है, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, पेरेंट्स जो हैं बहुत अच्छे से बात बच्चियों को सिखाते हैं, स्कूल में जो सिलेबस है वहाँ पर वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्कूल में है। तो मैं वापस जब मैं अपने गांव आती थी विज़िट के लिए या वेकेशन के लिए, तो मैं ये देखती थी कि लड़कियों को भी वही इशू होना शुरू हैं, महिलाओं को हिस्टेरेक्टोमी ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है। तो मुझे ये लगता था कि मैं इतनी बड़ी लैब रिसर्च में जो काम कर रही हूँ वो पता नहीं कब रिकग्नाइज़ होगा, लेकिन मैं यहाँ तो कुछ कर सकती हूँ। तो मेरी कहानी से खुद से ही मैंने प्रेरणा लेकर एक छोटी सी मुहिम की शुरुआत करी कि कैसे हम अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अवेयरनेस पे हम काम करें। ये तीन चीज़ें बहुत ही साइमल्टेनियसली होनी चाहिए इस एरिया में, और हम सबको करना चाहिए, तभी ये बड़ी प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। तो वही मेरी समस्या से प्रेरित होकर मैंने सोचा कि चलिए, एक ही जीवन है तो कम से कम जो है लड़कियों के लिए कुछ किया जाए। आपने बहुत अच्छा कहा माया जी, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू गॉट इंस्पायर्ड बाय योर ओन स्टोरी। जनरली क्या होता है कि जब हम समाज में कोई ऐसी घटना देखते हैं जो हमें झकझोर देती है, और हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से एक लड़की को के साथ ये हो गया है, या उसको जन्म भर की बीमारी उसके साथ लग गई है, बट इट इज़ हार्टनिंग टू सी दैट यू हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम योर ओन स्टोरी एंड यू हैव सीन व्हाट वाज हैपनिंग अराउंड यू, विच इज़ वेरी वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन इसी की इन द सेम ब्रेथ मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आपने इस मुहिम को लेके आप आगे चली, तो समाज का रिस्पांस कैसा था, स्पेशली वुमेन का रिस्पांस कैसा था? जो हमारे गांव की औरतें हैं, क्या वो इस बारे में दे वर वेलकमिंग, वो इस बारे में बात करना चाहती थी, नहीं चाहती थी? उनके घर के बड़े बूढ़ों उनको कन्विंस करना, आपने एक मुहिम चलाई है पैड वुमेन ऑन व्हील, तो जब आप एक, एंड आई हैव सीन दैट वीडियो आल्सो वेयर यू वर देयर इन दैट कार एंड देयर वाज अ बैनर, और आप उसे लेके चल रही हैं, जिस टॉपिक के बारे में कोई आदमी बात नहीं कर रहा है और उसके बारे में हम लोग माइक पे बोलते हुए कार के अंदर बैनर लगा के जा रहे हैं, तो दैट मस्ट हैव बीन वेरी चैलेंजिंग फॉर यू। जी बिल्कुल, मतलब नॉट फॉर मी एटलीस्ट, एक्चुअली सर्टनली द रेजिस्टेंस वाज देयर, क्योंकि मेरे एरिया में जहाँ से मैं हूँ नरसिंहपुर एरिया आता है, और नरसिंहपुर का भी वो पूरा ट्राइबल बेल्ट है, मतलब आदिवासी लोग, हमारे गांव में भी कुछ ट्राइबल्स रहते हैं। तो मैंने जब ये बात सबके सामने रखी कि मुझे ऐसा काम करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है, फैक्ट्री डालनी है, पैड्स बनाने हैं, तो लोग कहेंगे कि इसकी क्या ज़रूरत है, क्योंकि ये तो समस्या का वो है भी नहीं, मतलब हिस्सा भी नहीं है, समस्या का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन फिर मैंने कहीं ना कहीं जो मुरुगनाथम है, जो पैड मैन जिनके ऊपर फिल्म आई है, उनके बारे में मैंने उनकी टॉक देखी, फिर मुझे लगा सेम समस्या मेरे यहाँ है, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ ऐसा। तो जब वो पैड विमेन ऑन द व्हील का जो यात्रा का मैं जब चीज़ें कर रही थी, तो मेरे पास संसाधन नहीं थे, मतलब मैं लोगों से मदद मांग रही थी कि कोई मुझे गाड़ी दे दो, कोई मुझे कुछ कर दो, पर वो टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव था कि कोई अपनी गाड़ी में वो बैनर देखे वो नहीं उनको अलाउ था। तो फिर रातों रात मुझे गाड़ी का खुद से ख़रीदना पड़ा, और उस पर मैंने वो जो आप बैनर देखा होगा कि पैड का पिक्चर यदि कहीं दिख जाए तो लोग दूर भाग जाते हैं। हम गांव में जाते थे तो गांव में हम पहले लोकल लोगों से बात करते थे, फिर वो कहीं पूछते थे कि भाई क्या आपको हमारी महिलाओं से क्या बात करनी, फिर उनको धीरे से बताते थे कि कभी आपकी महिला, आपकी जो बेगम है या आपकी जो श्रीमती है, उन्होंने कभी बोला है कि मुझे तकलीफ़ है,
हाँ बोला है, तो उनको तकलीफ़ क्यों हुई है पता है आपको? तो फिर वो धीरे धीरे बताते थे, तो उन्हें हमें समझाने की कोशिश किया और उनको एक सहज भाव में हमें लाए कि देखिए ये समस्या और भी बढ़ सकती है, आज आपकी वाइफ को है तो कल बेटी को भी हो सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू टॉक अबाउट इट, वी हैव टू गो एंड एक्सेप्ट कि ये समस्या है, हमें इसका निदान करना है। तो इसी सोच के साथ मैं आगे बढ़ी और लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। क्योंकि मैं लोकल भाषा बोलती हूँ कि भैया बुंदेलखंडी में है, तो हम बैठ के वैसे ही बात करते हैं। तो ये सहजता को उन्होंने लिया। और जो मेरा बैकग्राउंड है कि मैं साइंस में मैंने पढ़ाई किया है, अमेरिकन लोगों को थोड़ा लोग ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं, सुनते हैं, आदर सम्मान मिलता है। तो उसी के साथ जो मुझे पॉजिटिव चीज़ें जो दिखी, तो मैंने वो यात्रा 15 ज़िले से अभी तक की है। मुझे 21 ज़िले जाना है अभी जब भी मुझे समय मिलेगा, लेकिन मैंने 15 आदिवासी ज़िले जो हैं वहाँ मध्य प्रदेश के कवर किए हैं। और भी मतलब केरला है, इस तरह के और भी स्टेट में मैं गई हूँ। तो एक अच्छा रिस्पांस मुझे ये मिला कि ये चीज़ें पहले कभी बताने को ही नहीं आया। और ऐसा मतलब जैसे हम कहते कि ये सरकार का दायित्व है या समाज का दायित्व है, पहले तो हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारे लिए बड़ी नई चीज़ है और बहुत इन्फॉर्मेटिव है और ऐसे सेशन आना चाहिए। क्योंकि लड़कियां तो हर साल उस फेज़ में जा रही हैं, लेकिन हर साल उस तरह के टॉपिक या उस तरह के जो इवेंट हैं वो नहीं हो रहे हैं। अब धीरे धीरे बहुत अवेयरनेस आई है। पिछले मैं 4-5 साल में देख रही हूँ कि हर जगह हर कोई NGO और बहुत सारे लोग सीरियस लेने लगे और टैबू भी थोड़ा कम हुआ है शहरों में। गांव में अभी भी है, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी को जोड़ें उसमें। नहीं, इट्स अ कमेंडेबल एफर्ट एंड वर्क यू आर डूइंग मैडम। कोई ऐसी घटना जब जो आपके साथ घटी हो कि आपने एक कैंपेन स्टार्ट की, लोगों को इस बारे में मालूम नहीं था, फिर उनको पता चला, उन्होंने सैनिटरी पैड्स को यूज़ करना शुरू किया, some women came to you, somebody came to you, some men came to you out of all the women, and उन्होंने आके कहा कि नहीं भाई, this is what difference you have made to us, and this is how our life has been changed because of your effort, your awareness, your education. Anything which you would like to share with us? बहुत सारे मतलब ऐसी घटनाएं हैं कि मैं 2017-18 में जब ये शुरू किया था, तब हम पहले वहाँ पर थे जब हम जा रहे थे। और उसके बाद जैसे 2-3 साल बाद कुछ हॉस्टल की हमें वार्डन मिलती हैं, वो हमको पहचान लेती हैं कि अरे दीदी आप तो वही हो जो हमारे हॉस्टल में आई थी। कितनी सारी वो बच्चियां हैं जो अभी चाह रही हैं कि आप और आओ उनसे मिलने। और यकीन मानिए जब हम जा रहे थे जो कैंपेन में, तो हमारे साथ में बड़े बड़े पत्रकार जो बहुत पढ़ी लिखी वेल्दी फैमिली, वो हमसे आके कहते हैं कि आप जो काम कर रही हैं वो खुद मेरे घर की समस्या है। मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरी पूरा परिवार पढ़ा है, लेकिन समहाउ हम इस बात को लेके पिछड़ गए हैं कि मेरी खुद की भतीजी जो थी जिसको पीरियड हुए, और हमारे घर में ये प्रथा है कि हम लड़कियां जब किसी को पीरियड है तो वो छू नहीं सकते हैं। तो उस वजह से उसके कोई बोर्ड के एग्ज़ाम देने नहीं ले गया उसको, तो वो डिप्रेशन में चली गई बिकॉज़ उसका 12वीं का परीक्षा था और उसके पीरियड आए तो वो किसी को छू नहीं सकती, तो कोई उसको गाड़ी में या कहीं से उसको हेल्प नहीं किया। तो मुझे आज भी उसका दुख है। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी ये मुहिम जो है बहुत बड़ी बने और सब जगह तक पहुँचे। तो ऐसे लोग भी हैं, और आदिवासी एरिया की तो और भी ऐसी कहानियाँ हैं कि हम क्या बताएं। तो बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। माया जी, आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक, वेरी इंस्पिरेशनल, एंड इफ आई मे आस्क यू, हाउ डू यू सी द वे फॉरवर्ड? डू यू सी मैनी मोर मायाज इन मेकिंग, creating this awareness among the other parts of India? How do you see the way forward, the initiative forward? Yeah, absolutely. Actually, to have this kind of a fire or desire, you need to find a solution for the problem, right? तो पहली बात तो the main I think requirement is in the village area or in a remote area. We need to build such a sustainable school where all the girls can get the education, right? मेरे जैसी माया तभी बाहर निकलेंगी जब वो अपनी लड़ाई से लड़ के किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगी, जब वो देखेंगी कि दुनिया बहुत बड़ी है, शहर बहुत बड़े हैं, महिलाओं को काफ़ी सारे जो हैं राइट्स हैं,
तो यदि वो उसी गांव में रहेंगी या उसी घर में रहेंगी तो मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगी। लेकिन हम यदि उनको अच्छा एजुकेशन दें, अच्छा स्कूल बनाएं, उन्हें प्रेरित करें कि भाई आपको पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने आसपास के परिवार में यही देखते हैं कि कोई सक्षम तब बनता है जब उसकी पूरी एजुकेशन अच्छे से हो और वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ वो दूसरों को देख सके और उनकी मदद कर सके। तो आई थिंक इसकी हमें इंडिया में काफ़ी कमी है और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ कैसे भी मतलब अच्छी एजुकेशन लें और जो परेशानियां हैं उनके ऊपर वो काम करना शुरू करें, क्योंकि मेरे जैसी माया और बने, लेकिन उनके लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि उनके इकोसिस्टम की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है और बहुत ब्रेव आई थिंक पेरेंट्स और सोसाइटी की ज़रूरत है जो उनको बाहर निकालने में मदद करें। माया जी, इफ़ आई मे शेयर विद यू, once I've read a quote which I still imprinted in my mind, and it goes something like this: we are the people we have been waiting for. And you are the epitome of this phrase. You have shown by your own example that if you put your mind on something, however difficult, however taboo it may be in society, it can be achieved. एक दूसरा इनिशिएटिव जो आपने लिया है, which I just noticed in our discussion and before that also, in fact, आपका एक सपना है एक आदर्श गांव का, जिसके ऊपर आपने किताबें लिखी है, स्वराज मुमकिन है, और उसी पे बेसिस आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, वो ऐसा था कि मैं आज से 6-7 साल पहले मैं एक गांव को देखा, मैंने सुना कहीं पर दिल्ली में, वो गांव मेरे ज़िले में ही था, तो सोचा ऐसी गांव हमें सब जगह बनाने हैं, क्योंकि गांधी जी जैसे कहते थे कि भाई पूरा जो अभी भी 80% आबादी है गांव में रहती है और जो चीज़ें हैं वो गांव से शुरू होना चाहिए। ग्राम पंचायत में जो निर्णय हैं वो वहाँ पर लिए जाने चाहिए, दिल्ली से या राजधानी से नहीं। तो वो गांव मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके ऊपर हमने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिर पुस्तक लिखी। उस गांव की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उस गांव में कभी पंचायत चुनाव नहीं होते थे, और पंचायत चुनाव नहीं होने से वहाँ पर विकास ज़्यादा हुए, स्कूल बने, हॉस्पिटल बने, रोड बने, पानी की सुविधाएं हुई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि ऐसा गांव यदि मेरा हो जाए तो क्या बात है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो समहाउ अभी मतलब जब से मैंने सोशल का काम शुरू किया है तब से लेके अभी तक कोई चुनाव नहीं हो रहे थे पंचायत के, तो सोचा है कि अब पहली बार चुनाव हुए इस साल हमारे यहाँ पर। तो इस चुनाव में मैंने सब गांव वालों को बैठ के समझाया कि देखिए लड़ाई भिड़ाई से कोई मतलब नहीं है, क्यों ना हम एक निर्विरोध पंचायत बनाएं जिसमें सारी महिलाएं रहें, और महिलाएं रहने से ये होगा कि सरकार आपको ज़्यादा पैसे देगी, और वो ज़्यादा पैसों से आप कितना अच्छा स्कूल बना सकते हैं, कितनी अच्छी आंगनबाड़ी बना सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अच्छा स्कूल नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी बच्चा आपके गांव का बाहर नहीं जाएगा। और प्राइवेट एजुकेशन इंडिया में जिस तरह से एक विकराल रूप ले रही है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। हमारे गांव का आज गरीब से गरीब आदमी 30,000 रुपये महीने का अपने बच्चे के लिए साल भर में खर्च करता है, लेकिन वो 30,000 बच्चे 3 बच्चे के लिए नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास है भी नहीं। तो यदि हम सरकारी स्कूल को इतना अच्छा बना दें कि उसे प्राइवेट की ज़रूरत ही ना पड़े, और हर घर से यदि वो 30,000 बच्चे बचने लगे पैसे, तो वो अपने खाने में, दवाइयों में और जगह खर्च हो सकते हैं। तो इसी मॉडल के साथ मुझे लगा कि क्यों ना मैं अपने गांव की सरपंच बनूं, और उस छोटे से रोल में मैं कैसे अपने गांव को आदर्श गांव बनाऊं, जिसमें सबसे अच्छी शिक्षा हो, महिलाओं का अच्छा स्वास्थ्य हो, जो हम लोग एक टेलीमेडिसिन सेंटर चला रहे हैं वो भी और बेहतर हो, और भी मतलब जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, बच्चों को हम कैसी जनरेशन बनाना चाहते हैं। मतलब अभी क्या हो रहा है कि इंडिया में एक रेट रेस में है कि ABCD पढ़ो और वो आपकी पढ़ाई हो गई। वो पढ़ाई नहीं है, क्योंकि हम जैसे मैंने दुनिया में रह के ये सीखा कि जब तक हम किसी चीज़ को सस्टेनेबल नहीं बनाएंगे, यंग पीढ़ी को हम वैसा नहीं सिखाएंगे, तो वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उस स्कूल को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बच्चे किसान भी बने, बच्चे इलेक्ट्रीशियन भी बने, बच्चे कारपेंट्री भी करें, और बच्चे डॉक्टर इंजीनियर्स भी बने। क्योंकि हम ये अभी ये क्रिएट कर रहे हैं कि जॉब सीकर
हम कैसे मतलब जो स्कूल्स हैं उसमें ये हो रहे हैं, लेकिन जॉब गिवर गांव के बच्चे कैसे बन सकते हैं, उस स्कूल के मॉडल में हमने वो सारी चीज़ें डाली हैं। और बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा हमने रखा है कि जो सैनिटरी वाली जो इशू है वो हम ऐसा स्कूल में व्यवस्था करें कि उन बच्चियों को कभी भी ड्रॉप आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। इतने अच्छे टॉयलेट्स हों कि वो पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक बिना रुकावट के वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। तो ये मेरे सपनों वाला गांव है। आई होप कि आप सबकी मदद से शायद बन पाए ये अगले 5 साल में, और आप लोग ज़रूर आइएगा देखने। नहीं, हम तो यही चाहते हैं माया जी, जो आपने जिस आदर्श गांव की परिकल्पना आपने हमें दी है, वैसे आदर्श गांव और वैसे आदर्श स्कूल हिंदुस्तान के हर गांव में बने, हर कोने में हो, यही हमारी प्रार्थना है और शुभकामनाएं आपको हैं। लेकिन इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से कोई इस तरह की मदद, इनिशिएटिव्स, any proposals are in discussion? I mean, for like in a panchayat, it is a system, right? Administration hai. I mean, there is so many schemes, but the problem is if people are not aware कि भाई हमारे लिए सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, हमें क्या कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा एप्लीकेशन करना है, कौन सा आईडी चाहिए, तो फिर वो कहाँ तक वो स्कीम पहुँचेंगी। तो मैं इसीलिए अपनी पंचायत में आई कि जो फंड्स हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, वहाँ से करप्शन को दूर करें, और उसके अलावा मतलब जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई हैं उनको हम एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करें जो लोगों के वेलफेयर के लिए हो। तो गवर्नमेंट की तो बहुत स्कीम है, आप राशन से लेके मतलब आप पैदा होने से लेके मरने तक सारी स्कीम गवर्नमेंट की हैं, लेकिन कितनी एग्जीक्यूशन में आ रही हैं, कितना मतलब % लोगों को लाभ मिल रहा है, वो पूरी ओवरऑल अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आपका सरपंच कैसा है, आपका सचिव कैसा है, आपका कलेक्टर कैसा है, और उसके बीच में जितने भी ऑफिसर्स हैं वो कैसे हैं। तो यहाँ पर नियत की बात होती है। तो सरकार तो एकदम बिल्कुल इंडिया में चला ही रही है। लोग कहते हैं कि भाई जो गरीब है, BPL है, उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन बस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टिव और जिन्हें कुछ करना है वैसे हमारे लीडर्स की ज़रूरत है जो वास्तविक लोगों को वो योजनाएं पहुंचा पाए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बड़ा नंबर या बड़ी संख्या % जो है वो स्कीम तो उनके लिए बनी है गरीब लोगों के लिए वो, लेकिन उनके लिए % कम है, जिनको नहीं चाहिए उनके पास भी वो हैं। तो इन अदर टर्म्स मैं कहूँगी कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जिनसे वो स्कीम चलती हैं वो उन तक ना पहुँच के कहीं और जा रही हैं। तो ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम राइट लोगों को ढूंढ के उन तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। तो डेफिनेटली स्कीम तो हैं बट एग्जीक्यूशन पार्ट मिसिंग है। जी Maya ji, I had the privilege of talking to you before this interview and you briefly mentioned about आपका 50 साल का विजन। जी थोड़ा हमें इस बारे में बताइए so that we can also be a part of it and we can get inspired। जी बिल्कुल, 50 साल का विज़न मेरा ऐसा है कि देखिए मेरा विज़न मतलब कि हम हर चीज़ को एक साइमल्टेनियसली एक लाइन में लेकर चलें जिसमें हमारी सस्टेनेबिलिटी आए, एम्प्लॉयमेंट आए, एजुकेशन आए, हेल्थ आए। तो हम ये सारी चीज़ों को एक साथ कैसे लेके जा सकते हैं जब हमारे पास हम उसकी पहले से प्लानिंग करें। जैसे मैं दुबई में आके देख रही हूँ कि यहाँ कितना फ़ाइन विज़न है जो हर एक चीज़ को बहुत ब्रॉड लेवल पे रख के उन्होंने बनाया है। तो मेरे लिए सबसे पहले आता है स्कूल। उस स्कूल को हम ऐसे तैयार करें जिसमें हम आज सुन रहे हैं कि मेरा मध्य प्रदेश से हूँ मैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कुपोषण है। सबसे पहले हम बच्चों का कुपोषण कैसे दूर करें, क्योंकि यदि बच्चा और महिला ये 2 लोग कुपोषित होंगे तो आप हेल्दी गांव या हेल्दी कम्युनिटी बना ही नहीं सकते। तो उस स्कूल में हमने जो मिड डे मील है उसको हमने बहुत ब्रॉड लेवल पे रखा है कि बच्चों को अच्छा खाना जिसमें प्रोटीन हो, जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, वो कैसे दिया जाए। फिर उन बच्चों को मॉनिटरिंग करने के लिए उसमें हमने टेलीमेडिसिन क्लिनिक रखा है जिससे उन बच्चों का वीकली मंथली मॉनिटर हो, ताकि वो उनमें कोई भी इस तरह के विकार हैं, इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो हम अर्ली एज में एड्रेस करें और उनको हेल्दी बनाएं। तो ये बात तो हो गई कि हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि गांव में इकोसिस्टम काफ़ी एकदम जो फूड चेन है वो पूरी टूटी हुई है। मतलब
जो जानवर थे आजकल घरों में नहीं है। दूध जो पैदा होता था हमारा प्रोटीन का मेन सोर्स था, वो दूध नहीं है। हम लोग टेट्रा मिल्क जो है वो हम वहाँ से ले रहे हैं दुकान से। तो ये सारी चीज़ें कैसे हम गांव में ही जनरेट करें, तो हमारे पास गाय भी हो, एनिमल भी हो, फार्मिंग भी नेचुरल हो, मतलब एक तरह से ऑर्गेनिक हो। तो वो सारी चीज़ें हम बच्चों से ही लेकर आ रहे हैं कि कैसे उनमें इंटरेस्ट डेवलप किया जाए कि भाई आप किसान के बच्चे हो, पहले किसानी तो सीखो। जॉब ढूंढने दुबई जा सकते हो या दिल्ली जा सकते हो, लेकिन यदि आप अपने गांव में हो तो आप अच्छा खाना कैसे उगा सकते हैं, आप उस खाने को अपने लिए कैसे अच्छा हेल्दी खा सकते हैं। फिर उसके अलावा यदि मान लीजिए हर कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, तो आप छोटे इलेक्ट्रीशियन, फार्मर या जो आपका ट्रेड में जो भी इंटरेस्ट है, मैकेनिक, आप वो कैसे बन सकते, तो उसके लिए भी वर्कशॉप हमने एक योजना बनाई है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है जो आम तौर से हम इंडिया में उसकी बात नहीं करते हैं और इम्पैक्ट सबको हो रहा है, ग्लोबली इम्पैक्ट है उसका, क्लाइमेट चेंज। तो उसके लिए हमने हमारे जो स्कूल का इनोवेशन सेंटर है उसमें हमने एक सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, एक लेबोरेटरी डिजिटल बनाई है, जिसमें क्या होगा कि मेरा ये विज़न है कि हम कैसे जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साइंटिस्ट को डिजिटली जो टेक्निक है उसके द्वारा हम गांव के किसानों को जोड़ें, ताकि वो ये रिसर्च स्टडी करके बता पाएँ कि भाई आपके फसल जो है इस साल आपको इस तरह की लगानी है, बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑन लाइक वाटर, सॉइल एंड जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर एंड ऑल। तो उससे क्या होगा कि किसानों को जो लॉस होता है हर साल कि कीड़े लगते हैं, फसल जल जाती है या फिर और तरह के जो इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि ये सारा कहीं ना कहीं क्लाइमेट से इम्पैक्टेड हो रहा है। तो यदि किसान ये स्टडी कर ले और ये समझ जाए कि मुझे पानी कम वाली फसलें लगानी है, या इस तरह से मुझे ये अवेयर होना कि मुझे फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, अदरवाइज़ मेरा बैरन लैंड हो जाएगा, तो ये सारी अवेयरनेस यदि उनमें आएगी तो हम अच्छा हेल्दी फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे, हम प्रिजर्वेटिव पे नहीं जाएंगे और हम लोकली जो ग्रोन है हम उसको कंज्यूम कर पाएंगे। तो हम कार्बन एमिशन भी हम कम कर पा रहे हैं और हम बड़ी कंट्रीज़ को भी हम फूड दे पा रहे हैं, जो क्योंकि हम जहाँ जिस एरिया में रहते हैं वो एशिया का सबसे अच्छा लैंड है, जिसको बोलते हैं कि वहाँ की मिट्टी, कछार, नर्मदा का इतना इफ़ेक्ट है कि वहाँ जो भी बोल दो सोना उगता है। तो यदि उस सोने जैसी जगह पे वहाँ के बच्चे एग्री बिजनेस सीख लेते हैं तो उनको ऐसे आर्टिफिशियल फार्मिंग पे ज़रूरत ही ना पड़े, वो अपनी फसल में से, अपनी मिट्टी में से इतना सोना उगाएं कि वो कहीं भी भेज के अपना प्रॉफिट बना के और लोगों को जॉब दे सकते हैं। तो ये सस्टेनेबल मॉडल है कि हम बिजली प्रोड्यूस उसी गांव में करें, पानी उसी गांव में ऑलरेडी है उसको और हम रोकने की कोशिश करें, किसानों को उनके फील्ड में अवेयर करें, बच्चों को आने वाली टेक्नोलॉजी से अवेयर करें और उनको एक प्लास्टिक कम करने की हैबिट में लेकर आएँ कि प्लास्टिक हमें नहीं लाना है अपने गाँव में। तो हम कैसे सस्टेनेबिलिटी वाले जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाएँ, कैसे हम लोकल वेवर्स को और कारीगर को हम वहाँ पर काम दें। तो मुझे लगता है यदि ऐसा गांव बन गया तो हमें और प्रोडक्ट की, चाइना की ज़रूरत ही नहीं है। माया जी, it's a very compelling and broad vision, and on a lighter note, I believe that you had tried your hand in politics also. You had fought election in 2014 as a member of parliament. So आने वाले भविष्य में क्या हम सोशल वर्कर माया से पॉलिटिशियन, लॉ मेकर माया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, उसका तो मुझे पता नहीं है। एक्चुअली मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आई थी कि मेरा विज़न जो था वो हेल्थ, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट पे था, क्योंकि जो मैंने फेस किया मैं चाहती हूँ कि वो और ज़्यादा लोग ना करें वहाँ पे। और बीइंग अ सोशल वर्कर आप उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं ला सकते, लेकिन बीइंग अ पॉलिटिशियन यू कैन डेफिनेटली ब्रिंग अ बिगर चेंज बिकॉज यू आर वर्किंग एट द पॉलिसी लेवल, राइट। तो यदि हमारा लीडर अच्छा होगा तो जनता के लिए चीज़ें भी आएंगी। तो इसी विजन के साथ में मैं उसमें एंटर हुई थी आज से करीब 8-9 साल पहले, लेकिन वो सोशल में कन्वर्ट हो गया। और अभी मैं वो तो नहीं कह सकती कि मैं आगे मेरा क्या होगा, लेकिन सर्टनली यदि मौका मिलेगा तो डेफिनेटली आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ वॉइस ऑफ द वॉइसलेस women and do as good as I can. Yeah. No, definitely, madam. And we need the willing politicians who are ready to go that extra mile and make a difference to the normal life of people. एक सवाल,
और आखिरी सवाल, I would say there are so many things which I want to ask you, but because of the constraint of time, I'll limit myself to one last question. We living here in UAE, or the people living across the world outside India, what can we do to enhance your project, enhance your vision, make whatever little contributions we can by being here? What is that we can do from our side? Absolutely. Like I am an NRI and I was living there and I always thought कि इंडिया को कैसे हम मदद करें, और वहाँ पे मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग और भी देशों में हैं जो चाहते हैं कि हम इंडिया से जुड़ें, लेकिन उनके पास ना टाइम है ना उतना एनर्जी है। तो आप डेफिनेटली आप अपने हिसाब से जो भी आपको टचिंग कॉज लगे कि भाई मुझे एजुकेशन में करना है या मुझे विमेन में करना है या हेल्थ में करना है, आप हम तक तो ज़रूर पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं सुकर्मा फाउंडेशन। मैं हमेशा हर जगह अवेलेबल हूँ, जिस भी कैपेसिटी में आप करना चाहें। तो क्योंकि कलेक्टिव काम जब होगा ना तो वो ज़्यादा लोगों को हेल्पफुल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक अकेला चना जो है वो ज़्यादा वो नहीं कर सकता है, लेकिन हम सब लोग यदि अच्छे विजन अच्छे इंटेंशन के साथ यदि हम जुड़ेंगे तो डेफिनेटली बड़ा काम और बहुत सारे गाँव के लिए हो पाएगा। तो आप जैसे भी जुड़ना चाहें कि आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप गूगल, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, जहाँ भी आप कनेक्ट होना चाहें, बिल्कुल मेरा सब जगह इन्फॉर्मेशन है। तो जैसा भी हम सब लोगों से मिले बनेगा, हम हर जगह मतलब तैयार हैं। तो सब लोग कनेक्ट हो सकते हैं उसी में। Maya ji, thank you so very much. It's an absolute pleasure talking to you, and thank you very much for this inspiring story. And it's been an eye-opening, and we always felt constrained by being outside India that there are no channels, there are no ways of giving back to the land from where we all came from, that piece of our heart which is there back home. There are now ways to find some nourishment for that piece of heart. Thank you very much, and we hope to remain connected, and I hope that people viewing this particular episode will get connected to Miss Maya, and I hope that we can all do something for our India. Absolutely. Thank you so much. It's an honor for me, and thank you for listening and giving me this opportunity. Thank you so much.